I am your English teacher Gyanashree Sharma. Today I am going to start for you tense. Okay, tense. Tense means काल. Okay, हिंदी में काल बोलते हैं tense. And there are three tenses. Three tenses. First is present tense. Second is past tense. Third is future tense. Okay? And this present tense जो हिंदी में वर्तमान काल भी बोलते हैं, पास्ट को अतीत बोलते हैं, फ्यूचर को भविष्य काल बोलते हैं. And these three tenses actually again 4 different parts मैं आपको बता रही हूँ. प्रेजेंट टेंस में सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट, इसमें प्रेजेंट होगा, सिंपल फ्यूचर भी होता है. आई राइट द सेंटेंसेस, देन यू विल कम टू नो व्हाट आर द टेंसेस एक्चुअली. सिंपल पास्ट होता है एंड सिंपल फ्यूचर. ओके, सिंपल फ्यूचर. Now for each sentence I will write one sentence. Simple present. I go to school every day. I go to school every day. Okay. यहाँ देखो, I is the subject, go is the verb, to is preposition, school that object and every day that is adverb. Okay. यहाँ simply subject है. This is called subject. इसको सब्जेक्ट बोलते हैं. और भार्ब दैट इज इन द सिंपल फॉर्म भार्ब. इसको बेयर इन्फिनिटिव भी बोलते हैं, सिंपल फॉर्म. सिंपल फॉर्म. सो वेयर द भार्ब इज इन सिंपल फॉर्म दैट इज कॉल्ड सिंपल टेंस, सिंपल प्रेजेंट. ओके. नाउ सिंपल पास्ट में होगा आई वेंट टू स्कूल yesterday. यहाँ जो went, go का पास्ट फॉर्म है went, इसका पूरा लिस्ट होता है, आप लोग देखोगे. go का पास्ट टेंस है went, but this is also simple because other things are not there. Subject and past form of the verb. This all past form of the verb go. Past form of the verb go. Okay. I went to school every day. Yesterday, sorry, I went to school yesterday. This is the simple past. Now simple future. I will go to school tomorrow. I will go to school tomorrow. मैं कल स्कूल जाऊँगा और जाऊँगी. I will go to school tomorrow. So here will go because this is future, but still this is the simple form of the verb. So this is simple future. Now I will say 3 different parts of a different form of the present, past and the future. मैं यहाँ लिखती हूँ present perfect. Present perfect. Then I will write here past perfect. Past perfect. Okay. Then I will write here future perfect. See, future perfect. Here past perfect you have to write the subject to लिखना ही पड़ेगा आप लोग को. Okay. I, suppose I ही लिखते हैं. Present perfect. I have completed my homework. I have completed my homework. मैं अपना homework finish किया, मैंने complete किया. Okay, I have completed my homework. Why this is perfect tense, present perfect? Because here subject, this is subject. Okay, remember this is subject. Then have verb. जब हम have verb लिखेंगे और I के साथ, this is also again called subject verb agreement. जब हम have verb लिखेंगे, so you have to give the third form of the verb. complete से complete, completed, completed होता है. जो एक completed होता है इसको बोलते हैं third form of the verb or the past participle. This is the third form of the verb.
third form of the verb or past participle बोलते हैं। यहाँ ग्रामर बुक में सब कुछ होगा, आप लोग देख लेना, ओके, एक बार देख लेना। डिस्कवर व्हेन you write have, definitely you have to give the third form of the verb of the past participle। have verb के साथ ये दो होता है, have and थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। इसको पीपी भी बोलते हैं, शॉर्ट पास्ट पार्टिसिपल मतलब पीपी, इसको पीपी भी बोलते हैं इन शॉर्ट फॉर्म, ओके। ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। नाउ पास्ट परफेक्ट टेंस, हैव का पास्ट फॉर्म लिखना पड़ेगा। आई हैड completed my work or my homework। I have completed my work yesterday, okay। I have completed my work yesterday। यहाँ had, why you have written had? Because past tense, have का past form है had, and completed वो तो लिखना ही पड़ेगा क्योंकि have के साथ हमेशा PP जाता है, past participle जाता है, okay। So you have to write completed and you have to write yesterday मतलब कल, okay। आज नहीं कल है, so that is present, past perfect। Now I'll write a sentence for future perfect, future। I will to लिखना पड़ेगा because this is future tense। I will have, but you have to write have also because it is future perfect। I will have completed my work। Here again you have to write have, not the third form, past form of the verb had, but in the present form। and will you have to write because this is a future perfect tense। यहाँ मैं लिख दिया future perfect, this is the example, future perfect। I will have completed my work, okay। past perfect, this is past perfect। I had completed my work yesterday। this is present perfect। I have completed my work, okay। अभी देखो जो मैंने टेंस बोला, सिंपल प्रेजेंट टेंस का ए फॉर्म होता है, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर। इसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट ये होता है, ओके। पास्ट टेंस का फॉर्म पास्ट परफेक्ट एंड सिंपल पास्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट। लास्ट में मैं आपको एक फ्लो चार्ट बना के दिखा लूँगी कैसे इसको करना है, ओके। नाउ हैज़ कम फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर लिख दिया हमें, फ्यूचर टेंस सिंपल फ्यूचर लिख दिया, ओके। हाउ व्हाट वी विल राइट नाउ? परफेक्ट। नाउ कंटिन्यूअस टेंस, ओके। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, आई राइट हियर प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, then future continuous, future fu, so future continuous, okay, continuous। now present continuous you have to write I am going to school, I am going to school, okay। I am going to school। past continuous I was going to school, then future is I will be going to school, okay। now look at these sentences। I am going, actually continuous tense जब होता है be verb, this is the be verb form। be verb में बहुत सारा फॉर्म होता है जैसे am, is, are, was, were, 5 फॉर्म्स होता है। this is be verb, this is ing। जब be verb आप लिखते हो साथ में जो भी, दिस इज मेन वर्ब, गो इज द मेन वर्ब, तब ing लगाना ही है, ओके। यू हैव टू राइट ing व्हेन यू यूज बी वर्ब। यहाँ m का पास्ट फॉर्म है was, सो was लिख दिया, बट सिंस दिस इज द बी वर्ब फॉर्म सो यू हैव टू राइट ing here with the main verb, you have to add ing here। यहाँ फ्यूचर कंटिन्यूअस है, सो आई विल भी लिखा, यहाँ बी ऐसे लिखा, विल क्योंकि विल एक मॉडल है, सो साथ में बी वर्ब लगाना ही है क्योंकि ing लिखना है, क्योंकि अगर बी वर्ब लगाएंगे ing नहीं लिखेंगे देन दैट सेंटेंस विल बिकम रॉन्ग। सो इन कंटिन्यूअस टेंस यू रिमेंबर बी वर्ब एंड
with the main verb you have to write ing. Be verb again plus ing. Then be verb, this is be verb and ing. So this is A हो गया continuous tense, present continuous, past continuous, future continuous. A हो गया perfect जो है verb और past participle PP form. A हो गया simple present. Okay. Now present perfect continuous. Okay. The fourth one we will write present perfect continuous. Present perfect continuous. इसमें जो perfect भी है continuous है so be verb भी लगाना पड़ेगा, have verb भी लगाना पड़ेगा, then PP past participle form and again ing. Okay. ये हो गया past perfect continuous. Continuous. ये हो गया future perfect continuous. Perfect continuous. Okay, so these are the three forms of the verb. May example let do present perfect continuous. I have been waiting. I have been waiting for him for an hour. इसका मतलब है मैं उनके लिए वेट कर रही हूँ, 1 घंटे से मैं उनके लिए वेट कर रही हूँ. ओके. पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या होगा? आई हैड बीन, हैव का हैड हो जाएगा क्योंकि दिस इज द पास्ट फॉर्म. आई हैड बीन वेटिंग फॉर हिम फॉर एन आवर. ओके. देन फ्यूचर में क्या होगा? आई विल हैव बीन वेटिंग फॉर हिम. ओके. नाउ लुक एट द सेंटेंसेस. दिस इज परफेक्ट भी है, कंटिन्यूअस भी है. सो वी आर यूजिंग हैव वर्ब एंड इन. बी का पास्ट पार्टिसिपल पीपी फ्रॉम इन है और बी वर्ब भी यूज़ करना है क्योंकि ये कंटिन्यूअस है. बी वर्ब यूज़ किया तो आईएनजी लगाया. ओके. सो हेयर ऑल्सो दिस इज द पास्ट पार्टिसिपल हैव वर्ब, पास्ट फॉर्म ऑफ द हैव वर्ब. सो पीपी फॉर्म लगाया, साथ में बी वर्ब है तो आईएनजी लगाया. हेयर ऑल्सो विल टू लगाना ही है क्योंकि ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस है. हैव वर्ब लगाया, इसका साथ पीपी फॉर्म है बीन, बी वाज बीन पीपी फॉर्म है और बी वर्ब ए लगाया तो साथ में आईएनजी. सो दिस इज द सिंपल रूल व्हिच यू हैव टू फॉलो व्हेन यू राइट सेंटेंसेस इन करेक्टली विथ करेक्शन व्हेन यू राइट टेंस. एंड मैं अभी आप लोगों को दिखा देती हूँ एक फ्लो चार्ट बना के जो आप लोगों को समझने में आसान होगा. टेंस मतलब 3 ही है जो काल बोलते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर. ओके. अभी इसका 4 ए है. ओके. इसका है सिंपल प्रेजेंट, ए है प्रेजेंट परफेक्ट, ए हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ए हो गया आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस. ओके. प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस. देन पास्ट का हो गया सिंपल प्रेजेंट, सॉरी सिंपल पास्ट, प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट, then past continuous, then हो गया past perfect, perfect continuous. ओके. देन फ्यूचर का भी ऐसा है, सिंपल फ्यूचर, देन हो गया फ्यूचर परफेक्ट,
देन हो गया फ्यूचर कंटिन्यूअस, देन हो गया फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। अभी टोटल यही है, आप लोग देख लीजिए। टेंस बोलने से प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, इसका फिर 4 भाग होता है। सिंपल प्रेजेंट जिसमें सब्जेक्ट होता है, जैसे मैंने एग्जांपल में बताया आई गो टू स्कूल, सब्जेक्ट होता है और वर्ब होता है। प्रेजेंट परफेक्ट में हैव वर्ब होता है, साथ में पीपी होता है, हैव प्लस पीपी, पीपी मतलब पास्ट पार्टिसिपल और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। एंड कंटिन्यूअस में क्या होता है, बी वर्ब प्लस आईएनजी होता है। और इसमें प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होता है, दोनों होता है, क्योंकि यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट भी है, कंटिन्यूअस भी है। हैव पर पीपी प्लस बी प्लस आईएनजी। सो सेम वे पास्ट के लिए भी वो होगा, फ्यूचर के लिए भी वो होगा। ओके, सो मैं जब सेंटेंस लिख के आप लोग को वर्कशीट भी भेजूंगी, मैंने पीडीएफ बना के जो ये सब भेजूंगी, जो व्हेन यू विल गो थ्रू द सेंटेंसेस यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द डिफरेंसेस बिटवीन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द टेंस। Thank you so much children. See you again in my next video. Thank you so much and take care.